Last class we have completed straight lines and pair of straight lines. Okay, so let us look at some questions on this. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं? Can all of you see the question? Hello. Yes, sir. Okay, the question is the bisectors of the angle between the lines y is equal to root 3x plus 3 and root 3y is equal to x plus 3 root 3 meet x-axis at P and Q. Find PQ. So can you do this question? बोलिए बेटा, दो लाइंस दिया हुआ है आपको. The two lines are given and it is given that the bisectors of the angles are meeting x-axis at P and Q. So can you find the bisectors of these two lines? So how do you find the bisectors of these two lines? देखिए, पहला लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे समथिंग इज इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे. ओके, क्लियर और नॉट? लिख सकते हैं ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में. एंड एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन समझ में आ रहा है? याद है आपको क्या करना है? एंगल बाइसेक्टर्स आर गिवन बाय फर्स्ट लाइन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आर माइनस ऑफ सेकंड लाइन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दोनों का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 है ना डिनोमिनेटर में. दिस टू आर गेटिंग कैंसिल्ड आउट, राइट? So if you take plus sign, you are going to get one angle bisector. If you are taking minus sign, you are going to get the other angle bisector. सही है क्या नहीं? Yes. So ऐसा दो एंगल बाइसेक्टर्स आ गया हमको. इसके बाद you have to find the x intercept of both of them. Okay, so these are the two lines. They meet x-axis at 3,0 and minus 3,0. So clearly PQ is equal to 6. समझ में आया? देखिए, सो रूट 3x माइनस वाई प्लस 3. देखिए यहाँ लिख सकते हैं रूट 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस लिया तो x माइनस रूट 3y प्लस 3 रूट 3. If you bring everything onto one side, you're going to get root 3 minus 1 times x minus of 1 plus root 3. इसका मतलब माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0. सो रूट 3 माइनस 1 कॉमन लेके हम कैंसिल किया तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है. सही है क्या नहीं? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करिए, अगर समझ में आया तो रेस्पॉन्ड करिए, मैं आगे जाऊंगा. Yes, sir. So plus लिया तो you're getting this as the angle bisector. If you take minus, you're going to get the other angle bisector. Okay, so these are the two angle bisectors. फर्स्ट लाइन में हमारा रूट 3 माइनस 1 कॉमन आया. सेकेंड एंगल बाइसेक्टर में you're going to get रूट 3 plus 1 as common. So if you cancel it out, you're going to get these as the angle bisectors. Okay, बोल रहा है कि this is meeting x axis at P, this line is meeting x axis at Q. So you're asked to find the distance between P and Q. So इसका x intercept निकाल दिया, इसका x intercept निकाल के just have the difference between the x intercepts, that's the PQ. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? Is the question clear? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रूव सर रुकिए सर, कॉपी कर रहे थे सर. हाँ कर लीजिए.
ओके क्वेश्चन कॉपी किया आपने? These are the lines basically. Y is equal to root 3x plus 3. Y is equal to x by root 3 plus 3. Okay. सर आगे जाइए सर, क्वेश्चन कॉपी कर लिए हैं सर। Okay. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes, sir. Okay, prove that the bisectors of angles formed by two intersecting lines are perpendicular to each other. This is something that we have seen, yes or no? So we have any two intersecting lines. अगर आपके पास दो intersecting lines है, if you draw the angle bisectors, you get two angle bisectors, yes or no? One angle bisector here, the Yes, other sir. angle bisector here. We have already seen that these are perpendicular to each other. You are just asked to prove this. याद है प्रूफ कैसे करना है? याद है अल्फा अल्फा थीटा थीटा, राइट? And the complete angle is a straight angle. So 2 times alpha plus 2 times theta is equal to कितना होगा? 180 degrees. Right? 2 times alpha plus theta is equal to 180 degrees. So angle between the blue lines, which is alpha plus theta, will always be equal 90 to 90 degree, alpha plus degrees. beta equal 90 degree. So this is a result which you need to remember. Okay. दिख रहे हैं? क्लियर? Shall I go to next question? सिंपल है ना ये? हाँ सर रुकिए सर, थोड़ा सा लिख रहे हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन्स px plus qy plus r in the line x plus y plus 1 equal to 0 is this line. देखिए एक लाइन है x plus y plus 1 equal to 0. Okay, you have another line which is this red line, px plus qy plus r is equal to 0. You have to show that the reflection of this red line about this blue line, इस blue line को mirror मान लीजिए. If you take this as the mirror, how does the reflection of red line look like? How does the reflection of the red line look like? It looks something like this, yes or no? Clear है? It looks something like this. So you have to prove that the equation of this line is qx plus py प्लस p प्लस q माइनस r इक्वल टू 0. ये शो करना है आपको. क्लियर?
क्वेश्चन समझ में आया? Show that the reflection of this px plus qy plus r equal to 0 on the line x plus y plus 1 equal to 0, that's this blue line, is this purple line. Okay, क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes. सो लॉजिक क्या है देखिए, इफ दिस इज द मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, ऐसा ना? रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? Yes, sir. This is alpha, this is also equal to alpha, right? And this mirror is also the other angle bisector, ऐसा ना? अगर नॉर्मल एक एंगल बाइसेक्टर है तो वो दोनों लाइंस का, हमको पता है कि एंगल बाइसेक्टर्स आर नॉर्मल टू ईच अदर, सो दिस मिरर इज ऑल्सो द अदर एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस. ये पर्पल लाइन एंड रेड लाइन का ब्लू लाइन एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So what shall we do? We'll assume that this is the reflected line and we'll show that this x plus y plus 1 equal to 0 is the angle bisector. अगर इसको एंगल बाइसेक्टर दिखा दिया तो एक इंसिडेंस है तो एक रिफ्लेक्टेड हो जाएगा ना, राइट? So the angle bisector of the lines px plus qy plus r and qx plus py plus p plus q minus r, दोनों का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा? एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला याद है? दिस इज द एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला, राइट? क्लियर? याद है? ये समझ में आ रहा है आपको? इसको भी आप मिरर मान सकते हैं. कैन यू सी दिस? इसको मिरर मान लिया तो भी रेड का रिफ्लेक्शन ये पर्पल ही होगा. ओके और ना? Yes, sir. Yes, sir. So the angle bisector of the red line and the purple line is being found out. p square plus q square root of p square plus q square सेम है, कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो प्लस लेके एक एंगल बाइसेक्टर आया, माइनस लेके दूसरा एंगल बाइसेक्टर आया. देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही यहाँ p माइनस क्यू कैंसिल होगा क्या, देखते हैं. हाँ, यहाँ कैंसिल हो रहे हैं. देखिए p प्लस क्यू सब कुछ. दिस इज टर्निंग आउट टू बी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा ना? क्लियर है? Yes, sir. So we have proved that x plus y plus 1 equal to 0 is the angle bisector of this equation and this equation. Okay, ये दोनों इक्वेशंस का x plus y equal to 1 एंगल बाइसेक्टर है. इसका मतलब क्या है? इसका इसके ऊपर रिफ्लेक्शन ये होना चाहिए. ओके, क्लियर है क्वेश्चन? सो एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. Shall I go to next question? सर कर रहे सर, रुकिए.
Okay. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A rhombus has two of its sides parallel to these two lines. If the diagonals cut at 1, 2, one vertex is on y-axis. Find the possible values of the ordinate of that vertex. डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इसका? Can you draw the diagram for this? Rhombus, ठीक है, एक rhombus है आपका. You have a rhombus like this. Two of its sides are parallel to these lines. इसका मतलब effectively lines का slopes मिल गया, ऐसा ना? Clear? If this is A, B, C, D, one of A, B and C, D का slopes को 2 मान सकता हूँ, ऐसा ना? एंड AD एंड BC का स्लोप्स क्या मान सकता हूं मैं? Can someone tell me the slopes of AD and BC according to the question? 7. 7. Okay. Slopes of the sides are given. बेसिकली मेरा rhombus का डायरेक्शन सारा मिल गया मुझे. इसके बाद क्या है? You know that the diagonals are perpendicular to each other, right? सही कि नहीं? Yes, sir. So let us draw the diagonals. The diagonals are bisecting each other and they are also perpendicular, right? This is point P. Clear है? So the question is, if one of the vertex is on y-axis, okay, मान लीजिए कोई भी एक वर्टेक्स y axis के ऊपर है, कोई भी मान सकता है आप. For example, let us say that the vertex B is of the form 0, y. Okay, clear? So you are asked to find the ordinates of this vertex. Clear है? So आगे जाने से पहले कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकिए. हेलो, हाँ हेलो बेटो, हाँ 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 బాటేట అంటే ఓ మాదిరిగా అది కాదు, ఆ ఎంగేజ్మెంట్ కొంచెం ఎక్కువ టైట్గా ఉంటుంది. వెంకటేశ్వర స్వామిది ఓకే, మరీ అంత టైట్ ఏం కాదు వెంకటేశ్వర స్వామిది. వెంకటేశ్వర స్వామి మామూలుగానే ఉంటుంది. हेलो हेलो, हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. हाँ. सो क्या स्ट्रेटजी होगा आपका फाइंड करने के लिए? बाय एनी चांस कैन यू फाइंड द स्लोप्स ऑफ दिस रेड लाइंस? ये जो डायगोनल्स का स्लोप्स निकाल सकते हैं फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द अदर टू लाइंस?
Can you find the slopes of these red lines? कुछ दिमाग लगा के दोनों रेड लाइंस का स्लोप्स निकाल सकता है क्या? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी. अगर इसका स्लोप m मान लिया तो बेटा, क्योंकि आपको ये पता है ना एंगल से सेम होना चाहिए ना, एंगल बाइसेक्टर है ना ये, द डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, राइट? सो ऐसा स्लोप निकाल सकता है ना, इसके साथ जितना एंगल है उसके साथ भी उतना ही एंगल है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2. इस तरफ भी सेम होना चाहिए, ऐसा ना? सो एक बार स्लोप्स आने के बाद पॉइंट तो है मेरे पास, ऐसा ना? सो वंस आई गेट दिस स्लोप्स आई हैव ए पॉइंट विथ मी. सो दोनों डायगोनल्स के इक्वेशंस निकाल सकता है क्या नहीं? वंस यू गेट द इक्वेशंस ऑफ बोथ ऑफ दिस, ये लाइंस का y इंटरसेप्ट पूछ रहे, इतना ही है ना क्वेश्चन. If a point 0 comma y lies on this line, you are being asked to find the value of y. Indirectly, you are just being asked to find the y intercept. Yes or no? Clear? समझ में आ रहे हैं? यस सर. देखिए इसका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, बट एक सॉल्यूशन हमारे तरफ से अगर जो कर सकता है, सो लेट द डायगोनल्स हैव स्लोप m. ओके, सो tan थीटा क्या होगा? ये वाला एक तरीके से tan थीटा इज m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 है ना, ऐसा ना? शुड बी सेम एज 7 के साथ स्लोप m माइनस 7 बाई 1 प्लस 7m होना चाहिए कि नहीं, ऐसा ना? ये इक्वेशन का मतलब समझ में आया आपको? रेस्पॉन्ड करिए. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? देखिए, इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. इफ दिस इज m, what is tan theta for these two lines? m minus 2 by 1 plus 2m, ऐसा ना? What is tan theta for these two lines? m minus 7 by 1 plus 7m, ऐसा ना? Yes, sir. रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आया तो. बाकी लोग समझ में Yes, आ sir. रहे हैं? सो इसको सॉल्व किया तो एक m आएगा या दो m's आएगा? सर 2m आएगा. देखिए कितना m's आएगा. सो विल सॉल्व दिस. सो m माइनस 2 प्लस 7m स्क्वायर माइनस 14m इज इक्वल टू m प्लस 2m स्क्वायर माइनस 7 माइनस 14m. सो सॉल्व किया तो 5m स्क्वायर, m स्क्वायर एक तरफ लेके आया तो 5m स्क्वायर. यहाँ माइनस 13m, यहाँ भी माइनस 13m आ रहे, ये कैंसिल हो गया ना, माइनस 13m माइनस 13m. सो 5m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? -5 आया. m स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहे हैं. क्या है इसका मतलब? क्या है? नो सोल्यूशन आ रहे हैं. हम जो एक्सपेक्ट किया 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, नो सोल्यूशन. तो इमेजिनरी आ रहा सर. हाँ, तो कहाँ गलती किया हमने? तो इसका स्लोप कैसा आएगा डायगोनल का? यूजुअली सर मॉड में ना है. हाँ, इक्वेशन क्या है? मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, है ना? प्लस वाला इक्वेट किया तो एक भी सोल्यूशन नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? माइनस वाला इक्वेट करेंगे. ओके, समझ में आ रहे? क्लियर? Yes, sir.
सो एक और बार मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, जस्ट इसका जो इस तरफ जो है सबका साइन बदल जाएगा. ओके, सो -m -2m² +7 +14m. सो दिस विल टर्न आउट टू बी 9m². m² ये 2 उस तरफ गया तो 9m². उसके बाद यहाँ -13m, यहाँ +13m. सो इट विल टर्न आउट टू बी -26m. -2 -7 -9 equal to 0. ओके, सो कुछ फैक्टराइज हो सकते हैं. अच्छा फैक्टराइजेशन होगा या नहीं हो रहा? -9 and -9 effectively -3 into 3 into 3 into 3. कुछ फैक्टराइजेशन हो सकते हैं? नहीं हो रहा है ना? इक्वेशन सही है? So m is equal to 26 plus or minus root of b square plus 4 into 9 into 9 by 2a, 2 into 9. So are you getting good numbers? Anything? 81 into 4 कितना है? 324. 26 square is 676. 101 1000 आया. ओके, सो 26 प्लस आर माइनस 10√10 by 18. यू गेटिंग 2 स्लोप्स. ओके, समझ में आया? 13 प्लस आर माइनस 5√10 by 9. जो मैं कर रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके और नॉट? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. one slope is 13 plus 5√10 by 9. The second slope is 13 minus 5√10 by 9. Okay, so line 1 first diagonal, अगर slope 13 plus 5√10 by 9 चाहिए तो 13 plus 5√10 into x minus 9y पुट किया तो हो जाएगा. ऐसा ना, एक लाइन ऐसा दिखना चाहिए ना. देखिए, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए शॉर्टकट हम बहुत बार देखे हैं, ऐसा ना. अगर लाइन का स्लोप पता है तो लाइन का स्लोप मेंटेन हो गया, ऐसा ना. Yes, sir. इसके बाद क्या करना है? इक्वेशन के लिए 1,2 से पास कराना है, राइट? वी हैव टू पास थ्रू 1,2. सो 1,2 पुट कर लीजिए. क्या आएगा? 13 प्लस 5√10 माइनस 18. सो 5√10 माइनस 5. सो 5 इंटू √10 माइनस 1 आएगा. ओके, दिस इज वन इक्वेशन. व्हाट इज अदर इक्वेशन? यहाँ भी 1,2 पुट कर लीजिए. क्या आएगा? -5√10 माइनस 5. सो -5 टाइम्स √10 प्लस 1 आएगा. क्लियर है? एंड वंस यू गेट द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स, इसके बाद आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? वी वांट द y इंटरसेप्ट, ऐसा ना. One of the vertex is on y axis. Find the possible values of the y coordinate. So इसका x intercepts चाहिए. What are the x intercepts? What are the y intercepts? बोलिए. So y intercept के लिए x equal to 0 पुट करना है ना, right? Yes, sir. So क्या होगा आंसर? एक है 5 times √10 minus 1 by -9. So minus of this by 9.
एंड दूसरा वाई इंटरसेप्ट क्या है, व्हाट आर द सेकंड पॉसिबल वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स √10 प्लस 1/9। क्लियर है, आंसर समझ में आया? Yes, sir. Is there any other way to do this? So यहाँ जो solution भी देखेंगे एक बार, we have thought for ourselves and done this solution, okay? So concept is diagonals of a rhombus bisect the angle. Clear? आपको पीछे दिख रहे हैं clearly? नहीं सर। सो अगर ये नोट किया तो मैं ये रब कर लेता हूँ, आई जस्ट रब द सोल्यूशन दैट आई डन। ये निकाल सकता हूँ सोल्यूशन? नहीं सर, रुकिए, नोट कर रहे हैं। ओके बेटा। सर सर एक बार बोलिए तो वो जो गोल किए ना आप लाइन 1, वो वहाँ पर क्या हुआ सर? क्या है बेटा, कहाँ? हाँ ये लाइन 1 लाइन में। 1 हाँ जो सर्कल की, उसमें क्या हुआ है सर? क्या हुआ मतलब? ओके एक सेकंड, मैं एक काम कर लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया, इस तरफ राइट साइड वाला पूरा नोट यस कर सर, लिया। यस सर। रुकिए थोड़ा सा मैं क्लियर करके मैं बोलता हूँ, ओके? मैं एक्चुअली लाइन का इक्वेशन लिखने का शॉर्टकट यूज़ किया मैंने। कोई भी लाइन इक्वेशन को लिखने का शॉर्टकट क्या है? अगर मान लीजिए मुझे पता है कि लाइन का स्लोप जो है 2/3 फॉर एग्जाम्पल, लाइन को मैं 2x - 3y जैसे लिख सकता हूँ, यस सर। इज इक्वल टू यहाँ जो आएगा ये कैसा आएगा नंबर, मान लीजिए 2,3 और 1,2 से पास हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। सो क्या करना है, राइट साइड नंबर के लिए 1,2 यहाँ पुट करना है। सो 2 - 6 -4 आ रहे, सो -4 यहाँ पुट कर लेता हूँ। सिमिलरली मेरा स्लोप क्या है, 13 + 5√10/9, ऐसा ना? सो उसको यूज करके मैं इक्वेशन क्रिएट कर लिया। एंड राइट साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,2 को इस पे पुट कर किया हूं मैंने। आई पुट 1,2 इन दिस इक्वेशन। सो 1,2 पुट किया तो क्या आएगा, 13 + 5√10 - 18, ऐसा ना?
सो क्या होगा 5√10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू √10 माइनस 1, वही लिखा हूँ मैं। इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा स्लोप के लिए दूसरा इक्वेशन लिखा हूँ मैं। क्लियर? Shall I rub this entire thing? यस सर। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है, और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट एल्स कैन बी डन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक तरीके से हम सॉल्व किया, ओके। सो लेट अस सी व्हाट द अदर मेथड इज. So the diagonals of a rhombus bisect the angle. Is it clear? So let the sides intersecting at y-axis be, एक वर्टेक्स तो y-axis के ऊपर है ना, ऐसा ना, एक वर्टेक्स तो y-axis के ऊपर है. So let us say that these two equations, क्वेश्चन के हिसाब से एक y इक्वल टू 2x प्लस 3 का पैरेलल है, दूसरा y इक्वल टू 7x प्लस 2 का पैरेलल है, राइट? सो फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 है, सो 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा 1 जैसा होना चाहिए, 7x माइनस वाई प्लस लैम्डा 2 जैसा होना चाहिए कि नहीं इक्वेशंस, ऐसा नो? वन लाइन इज हैविंग ए स्लोप 2, द अदर लाइन इज हैविंग ए स्लोप 7. सो स्लोप 2 का एक जनरल लाइन कैसे दिखेगा? 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा 1, स्लोप 7 का एक जनरल लाइन, ओके? So these lines meet the y-axis at 0 lambda 1 and 0 lambda 2. इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 0 कमा लैम्डा 1. इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 0 कमा लैम्डा 2. क्लियर है? बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? बोथ ऑफ देम हैव टू मीट ऑन द सेम पॉइंट, राइट? y एक्सिस को सेम पॉइंट पे मीट करना है, इसका मतलब क्या है? कोई बोल सकता है? लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 होना चाहिए. क्लियर है? सो दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2 का जरूरत नहीं है, दोनों को हम लैम्डा मान सकते हैं. क्लियर हो ना? इजी? ओके, यहां तक क्लियर है? सो आई हैव एज्यूम्ड दीज टू लाइन्स, ओके. नेक्स्ट स्लाइड में क्या होने वाला है आगे, कोई गेस कर सकते हैं? कैन समवन गेस मी, गेस फॉर मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? नेक्स्ट कौन सा स्टेप आएगा? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हाँ फॉर्मूला लगा देंगे, हाँ L1 L प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0. ओके. हाँ हाँ हाँ, इसके बाद? उसके बाद उसमें 1 हाँ, इक्वल 0 कमा y पुट. 0 कमा वाई तो ऑलरेडी पुट कर लिया, इसलिए लैम्डा इज लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा आ गया, और कुछ नहीं मिलेगा वहां से आपको. हाँ गेस करिए, और ठीक ठाक गेस कर रहे हैं. हाँ, अब क्या होने वाला है? सर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लैम्डा फाइंड कर लेंगे किसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करिएगा? ये दोनों को? दोनों इक्वेशन को. हाँ नहीं, ये दोनों को सॉल्व किया तो कुछ आने वाला नहीं है आपको, लैम्डा नहीं आएगा. यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा का वैल्यू नहीं आएगा. समझ में आ रहे? देखिए आप ट्राई टू यूज दिस डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल, वो सारा थ्योरी है ना, उसको यूज करने के लिए कोशिश करिए. देखिए अभी तक हम सिर्फ ये दोनों लाइंस का इक्वेशंस एज्यूम किए हैं, ओके. सर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लगा देंगे. हाँ, ये दोनों का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल देंगे, ओके. इसके बाद क्या करने वाला है? 1 कमा 2 को उसमें पुट कर देंगे. हाँ, 1 कमा 2 को पुट किया तो इसके बाद क्या फाइंड, मतलब व्हाट विल यू फाइंड वंस यू पुट 1 कमा 2? लैम्डा. हाँ, तब लैम्डा आएगा, ओके.
समझ में आ रहे? सो वंस यू गेट दिस लैम्डा, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 ही मेरा आंसर्स है. ओके, द एंगल बाइसेक्टर्स विल बी क्लियर है. ये एंगल बाइसेक्टर्स, दो एंगल बाइसेक्टर्स आएगा प्लस और माइनस करके. ओके, एंड these angle bisectors have to pass through 1, 2. Yes or no? क्लियर है इक्वेशन? सो 1, 2 पुट करना पड़ेगा आपको. सो यू गेटिंग 5/9 टाइम्स 1 प्लस और माइनस √10. सेम आंसर्स आया बेटा आपको? हमको जो आंसर्स आया वही आया अभी भी, या चेंज हो गया? समझ में आया बेटा क्या हो रहा है यहाँ? यस सर. देखिए √5 यहाँ, 5√2 यहाँ. तो एक बार प्लस वाला आप कर लीजिए, यू गेट वन इक्वेशन. सो माइनस करस्पॉन्डिंग गेट्स द सेकेंड इक्वेशन. सो बोथ ऑफ देम हैव टू पास थ्रू 1, 2. ऐसा. सो एक पहला इक्वेशन में 1, 2 पुट किया तो लैम्डा का एक वैल्यू आएगा. सेकेंड इक्वेशन में 1, 2 पुट किया तो लैम्डा का सेकेंड वैल्यू आएगा. क्लियर हो ना? ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वैलिड प्रोसेस, राइट? सेम आंसर्स आया जो प्रीवियसली हम सॉल्व किया वहां से और यहां से. चेक कर लीजिए. यस सर. ओके, सर पीछे जाइए सर एक बार. हो गया सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स विच कंटेन्स 1, 2. देखिए दो लाइंस दिया गया है. देर आर 4 पार्ट्स. कहीं ना कहीं 1, 2 होगा ना. 1, 2 विल बी समवेयर इन दिस प्लेन. ऐसा. सो यू हैव टू फाइंड दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग 1, 2. मतलब इस तरफ जो एंगल बाइसेक्टर 1, 2 का तरफ जो एंगल बाइसेक्टर है वो चाहिए आपको. कैसे करिएगा? याद है हमको कंटेनिंग 0, 0 वाला किया है हम. ऐसा नो. वी नो हाउ टू फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ऑरिजिन, राइट? सब पुट करके देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. किसको?
देखिए एग्जैक्टली सर ये एंगल कौन सा बाइसेक्टर निकला पे 1, होने का 2? जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे होने का जरूरत नहीं है 1,2 किस पे पुट करिएगा 1,2 थोड़ा सा बोलिए। देखिए आपको 2x प्लस वाई माइनस 6 बाई रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस ऑफ 2x माइनस 4y प्लस 7 बाई रूट 20, ऐसा ना, यहाँ तक क्लियर है। प्लस लिया तो एक एंगल बाइसेक्टर यस आएगा, सर। माइनस लिया तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आएगा। ओके, द क्वेश्चन इज विच इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग 1,2, वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। दैट्स द मेन इश्यू इन दिस क्वेश्चन। कोई बोल सकता है बेटा क्या करना पड़ेगा? कितने लोग को ये याद है 0,0 कंटेनिंग वाला प्रोसेस याद है? कितने लोग को? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द प्रोसेस फॉर एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन? एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन के लिए क्या करना पड़ेगा पहले आपको? C1 और C2 को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, फिर हाँ, इसके बाद प्लस प्लस है तो कंटेनिंग ऑरिजिन, प्लस माइनस है तो नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन है सर। यस सर। अब एक बात सोचिए, वो C1 C2 ग्रेटर देन 0 क्यों किया हमने, याद है? C1 C2 ग्रेटर देन 0 क्यों किया हमने? when you make C1 C2 both greater than 0, simply 0,0 comes into plus plus quadrant, ऐसा ना? सही कि नहीं? यस सर। सो अब क्या करना है, हम 1,2 को प्लस प्लस क्वाड्रेंट में लेके आना पड़ेगा, ऐसा ना? सो इसमें 1,2 पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? देखिए फर्स्ट लाइन में 1,2 पुट किया तो आर यू गेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। ओके, एंड L2 में 1,2 पुट किया तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। आ रहा है ना, ऐसा ना? सो हम क्या करेंगे, 1,2 को जब मैं पुट करता हूं दोनों को प्लस प्लस आने के लिए कोशिश करूंगे, ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहे, सो L1 को मैं क्या करूंगा, एक नेगेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ऐसा ना? समझ में आ रहे? सो प्लस ऑफ दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2x माइनस 4y प्लस 7 बाई रूट 20। देखिए 1,2 को हम पॉजिटिव पॉजिटिव में लेके आ गया, इसके बाद प्लस इक्वल टू प्लस किया तो यू गोइंग टू गेट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द पॉइंट 1,2। समझ में आया या नहीं? समझ में आ रहा है किसी को? समझ में आया बेटा? यस सर। देखिए थ्योरी दिया, सो एक देखिए फर्स्ट लाइन को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों ग्रेटर देन 0 हो रहे हैं। ओके, 1,2 का तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग 1,2 क्या होगा, फर्स्ट लाइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद प्लस इज इक्वल टू प्लस इक्वेट किया। क्लियर है? समझ में आया या नहीं? आगे जा सकता हूं? यस सर। नेक्स्ट, find the equation of the straight line drawn through the points of intersection of these two lines and perpendicular to the line cutting intercepts 5, 6 on the positive axis.
देखिए दो लाइंस है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना है और इस लाइन का परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो कौन सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? L1 प्लस लैम्डा L2 0, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है क्या नहीं? Yes or no? समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes. So this is a general line passing through the point of intersection. And अगर intercepts 5,0 and 0,6 है तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? What is the slope? बोलिए जल्दी, स्लोप कितना होगा? What is the slope of this blue line? -5/6. -6/5 बेटा, ऐसा ही गलती नहीं करना है। क्लियर? y2 - y1 by x2 - x1, ओके। सो अगर इसका स्लोप -6/5 है तो ये वाला लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? 5/6. 5/6, okay? So this is the line and the slope should be equal to 5/6. So इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था x के साथ 1 + 2 लैम्डा, y के साथ 1 - 3 लैम्डा -4 - लैम्डा = 0, okay? स्टैंडर्ड फॉर्म। What is the slope of this line? Minus of 1 + 2 lambda by 1 - 3 lambda, okay? Minus of a by b इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5/6। इसको सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा आ जाएगा या नहीं? लैम्डा आएगा? Yes, sir. सो वंस यू गेट दिस लैम्डा को वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो यू गोइंग टू गेट द इक्वेशन, राइट? सो जल्दी कर लीजिए। -6 - 12 लैम्डा = 5 - 15 लैम्डा। सो 3 लैम्डा = 11, लैम्डा = 11/3, ओके? सो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? x + y - 4 + 11/3 टाइम्स 2x - 3y - 1 = 0। सो यू डोंट नीड टू डील विथ फ्रैक्शंस, सो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 3 ये 3 कैंसिल हो जाएगा = 0। समझ में आ रहे? सो 3 टाइम्स लाइन 1 + 11 टाइम्स लाइन 2 = 0 इज द आंसर। समझ में आया? Yes, sir. L1 + lambda L2 = 0, intercepts 5 6, स्लोप -5/6 है, सो रिक्वायर्ड स्लोप 6/5 होना चाहिए, 11/3, 3 टाइम्स लाइन 1 + 11 टाइम्स लाइन 2 = 0। हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे सेपरेट करना है याद है? कैसे फैक्टराइज करना है याद है क्या नहीं? एनी रेस्पॉन्स? एनी रेस्पॉन्स? सीधाचार्य फॉर्मूला। हाँ, सो 12x² प्लस x के साथ क्या है? 5y + 19, इसके बाद -28y² + 61y - 21 = 0। x² कोएफिशिएंट, x कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, ओके? सो x = -b ± √b², इसका स्क्वायर करना है। सो 25y² +
361 प्लस 190y इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बीटा, इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 48 टाइम्स माइनस 28y स्क्वायर प्लस 61y माइनस 21 बाई 24, या 24 को मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, जो नीचे जो 24 लिखना है वो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, कर सकता हूँ कि नहीं। सो माइनस ऑफ 5y प्लस 19 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बोलिए, यहाँ 25y स्क्वायर, यहाँ कितना है, बहुत बड़ा y स्क्वायर है, 48 इंटू 28 कितना होगा, वन 1304 y स्क्वायर, ओके और नॉट, सॉरी 1304 प्लस 25 भी करना है ना, राइट। so, कितना आएगा 1329 y स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। तो से रेस्पॉन्ड करिए, मतलब ठीक ठाक समझ में आ रहे जो मैं कर रहा हूँ। यस सर। इसके बाद y का टर्म 190y माइनस 48 इंटू 61 है, एक बार 48 इंटू 61 कर लीजिए, 6 8 48 4 6 4 24 28 8 2 1 9 2928, ठीक है, माइनस 2928 प्लस 190, सो 2928 माइनस 190 कर लीजिए, 8 12 माइनस 9 3 8 माइनस 1 7, इतना बड़ा बड़ा नंबर्स आ रहे हैं, 2738 टाइम्स y एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म 361 इज प्लस 48 इंटू 21 भी प्लस है, सो 48 इंटू 21 48 96 8, सो 1008 प्लस 361 96 1369 प्लस 1369 24x, बाय एनी चांस ये भी 1369 है क्या, क्योंकि ये भी 1369 है तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा मेरा। देखिए देखिए 4 8 प्लस 6 14 है ना, राइट, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, सो दिस इज ऑल्सो 1369, क्लियर। So that is equal to minus of 5y plus 19 plus or minus 1369, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, so what is root of 1369, what is root of 1369, 37 37, so 37 इंटू वो बाहर गया तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 y माइनस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट y माइनस 1, ओके। सो प्लस लिया तो 37 माइनस 5y 32y माइनस 9 माइनस 37 माइनस 46, एक ऑप्शन है, माइनस पुट किया तो माइनस 42y माइनस 9 प्लस 37, so 37 minus 9 is 28 plus 28, so हो गया, so 24x is equal to 32y minus 46, 24x is equal to minus 42y plus 28, so कुछ कैंसलेशंस होगा, any कैंसलेशंस, टू कैंसिल होगा क्या और कुछ कैंसिल हो सकता है, सो 12x माइनस 16y प्लस 23 इक्वल टू 0, 12x प्लस 21y
-14 इज इक्वल टू 0। सही है क्या मेरा आंसर्स? थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ? ये 19 है ना? 9 नहीं है, ये 19 है ना? ओके, -46 नहीं है, 56 है। ये 28 नहीं होगा, ये 18 होगा। ओके, अब सही आंसर आएगा, ऐसा ना? व्हाट इज द फर्स्ट आंसर? 8 कॉमन लिया तो 3x माइनस 4y प्लस 8 7 आर इक्वल टू 0। एंड यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 निकाल दिया तो 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो नाउ इट लुक्स गुड। समझ में आया कैसे किया हमने? ओके और नॉट? यस सर। देखिए लगभग वही किया जो हम किए हैं, वैसा ही किया। सो श्रीधराचार्य's फॉर्मूला यूज़ किया, गॉट द सेम आंसर्स। ओके, सेम आंसर्स आया उसको भी। क्लियर है ये? Yes, sir. Shall I go to next question? देखिए, show that the lines joining the origin to the points common to the first equation and second equation are at right angles, whatever may be the value of lambda. क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, एक कर्व है और एक लाइन है। show that the lines joining to the origin to the points common to these two curves, ये वाला lines will always be 90 degrees. The angle between them is always equal to 90 degrees. That's what you need to show for whatever may be the value of lambda. समझ में आ रहे? सो कौन सा प्रोसेस है, कुछ याद है? लास्ट क्लास में एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस देखे हम, ये पेयर ऑफ लाइंस निकालने के लिए। Homogenization. होमोजेनाइजेशन। सो क्या करना पड़ेगा? लाइन को इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा ना, fx माइनस जी वाई बाय लैम्डा इक्वल टू 1, ऐसा ना? fx माइनस जी वाई बाय लैम्डा इक्वल टू 1। क्लियर? सो इसको यूज़ करके हम होमोजेनाइजेशन करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जी एक्स को क्या करना है? एफ एक्स माइनस जी वाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, राइट? एफ वाई को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो एफ एक्स माइनस जी वाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके और ना? सो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है, एंड व्हाट एल्स? वेयर एल्स डू यू गेट एक्स स्क्वायर टर्म? कोई बोल सकता है एक्स स्क्वायर के साथ और क्या है? GF by lambda. हाँ, जी एफ बाई लैम्डा। ओके, प्लस एक्स वाई के साथ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, एक्स वाई के साथ मुझे लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। क्यों बोल सकते हैं? वॉट शुड यू प्रूव? यू हैव टू प्रूव दैट द लाइन्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। एक पेयर ऑफ लाइन्स के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, तो व्हाट इज द कंडीशन?
ए प्लस बी इक्वल टू 0। वाह, बहुत अच्छा है, याद कर रहे हैं आप लोग। सो वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, देखिए यहाँ -1, और वाई स्क्वायर के साथ क्या है, व्हाट एल्स विथ वाई स्क्वायर, -fg/λ इक्वल टू 0। ओके, क्लियर और नॉट? So clearly, do you see a plus b equal to 0? Yes or no? Can you see that x square coefficient and y square coefficient on addition gives 0? समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? The pair of lines are perpendicular to each other. That's what you need to prove. Okay? क्लियर है क्या नहीं? समझ में आया? देखिए, होमोजेनाइजेशन के लिए लाइन को इक्वल टू 1 लिखे हैं, using this equation to homogenize the curve. So you got this. So x square के साथ क्या है, y square के साथ क्या है, you have to find. So clearly sum of the coefficients of x square and y square is equal to 0. Thus the required lines are perpendicular to each other. Clear or not? समझ में आया? Easy? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकता हूँ? कुछ रेस्पॉन्ड करिए, जा सकता हूँ क्या नहीं? यस सर। Find the angle between the pair of lines. बाय एनी चांस ये क्वेश्चन किया हूँ क्या मैं क्लास में लास्ट टाइम? देखते हैं। सो हाउ डू यू फाइंड द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ लाइंस? फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 2 root under a square minus ab by a plus b. 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ओके, सो आप जो भी इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, सो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड किया तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2xy cos beta sin beta, right? So if you send everything onto one side, x square into sin square alpha minus cos square beta plus y square into sin square alpha minus sin square beta plus 2xy cos beta sin beta equal to 0. Okay, clear? So tan theta is equal to 2 रूट h स्क्वायर का मतलब क्या है? h स्क्वायर का मतलब है cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, माइनस a इंटू बी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इंटू वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ओके, डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इफ यू ऐड दीज टू व्हाट हैपेंस? देखिए,
साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -1 हो गया, ऐसा ना? कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा तो 1 है ना। सो व्हाट हैपेंस इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू? शायद मुझे लग रहा है कि एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं। साइन पावर 4 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। कौन सा टर्म कैंसिल हो रहे हैं? देखिए कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, बाहर एक माइनस है, सो सबका साइंस उल्टा हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन पावर 4 अल्फा। सो ये दोनों में साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा माइनस साइन पावर 4 अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट करने के बाद 2 इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय ये क्या है 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1 किसका फॉर्मूला है? माइनस कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला है क्या नहीं? क्योंकि cos 2 अल्फा इज 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, सो 2 साइन अल्फा cos अल्फा क्या होते हैं? साइन 2 अल्फा बाय माइनस ऑफ cos 2 अल्फा, इट इज इक्वल टू माइनस tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा को tan ऑफ पाई माइनस 2 अल्फा लिख सकते हैं। So theta is simply equal to pi minus 2 alpha or simply 2 alpha. देखिए कितने लोग को समझ में आ रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ? देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन में। बेटे समझ में आया ये क्वेश्चन? तो इसे रेस्पॉन्ड करिए। यस सर। लास्ट में पाई माइनस 2 अल्फा और सिंपली 2 अल्फा क्यों लिखा हूं मैंने? क्योंकि दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स होगा, एक 2 अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस 2 अल्फा होगा, ऐसा? वन एंगल इज पाई माइनस 2 अल्फा, द अदर एंगल इज 2 अल्फा। क्लियर है? यस सर। So can I go forward? Shall I go to next question? बोलिए, shall I go to next question, all of you? Yes, sir. सर। ऐसा क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा अपने आप से? लग रहा है हो जाएगा?
देखिए बेसिक फॉर्मूलास याद किया तो हो जाएगा सब कुछ. नेक्स्ट, prove that the lines are equally inclined to these lines. देखिए क्या प्रूव करना है बेटा? प्रूव दैट one pair of lines are equally inclined to the other pair of lines. इसका मतलब क्या है? इसलिए दूसरा पेयर ऑफ लाइंस जो है ऐसा है. बेसिकली ये फर्स्ट पेयर है, पेयर वन, ओके, फर्स्ट पेयर. ये सेकंड पेयर है. सो ये दोनों लाइंस और ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल इक्वल है. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है एक पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है. You have to show that these two pairs of lines are equally inclined to one another. समझ में आ रहा है क्या प्रूव करना है? कैसे प्रूव करिएगा? एनी आइडियाज? How will you prove that two pairs are equally inclined to one another? Any ideas? कोई दे सकता है बेटा कुछ आइडिया? ट्राई करिए, थिंक ऑफ समथिंग. कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? सर एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन इंडिविजुअल पेयर ऑफ लाइंस आर इक्वल. हाँ वही है, उसी को उसको कैसे कैसे आप प्रूव करिएगा, क्योंकि प्रूव करना है ना क्वेश्चन. सर दोनों को बीच वाला एंगल से ऐड कर देंगे. क्या दोनों को बीच वाला एंगल का मतलब ये एंगल से यस सर. ऐड करिएगा मतलब क्या? ऐड का मतलब क्या है? देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए सिंपल तरीका है. ये दोनों लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर है अगर सेम प्रूव किया तो हो जाएगा. इफ बोथ दिस लाइंस हैव सेम एंगल बाइसेक्टर्स देन विल दिस टू एंगल्स बी इक्वल. अगर ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल है, ये टोटल एंगल इक्वल है, सो रिमेनिंग एंगल से इक्वल होना पड़ेगा ना. समझ में आ रहे? Yes, sir. So you just have to prove that if you want to prove that two pairs of lines are equally inclined to one another, simply क्या prove करना है आपको? You have to prove that both the lines have same angle bisector. समझ में आ रहे? Clear or not? So फर्स्ट इक्वेशन के एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या है? याद है एंगल बाइसेक्टर्स इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एच का मतलब एच टाइम्स ए प्लस बी आएगा. सर सो ए प्लस सी कैंसिल किया तो ए माइनस बी होगा. ओके, सेकेंड लाइन का एंगल बाइसेक्टर्स क्या है? व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर्स टू दिस इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एच. ऐसा नो? सो दोनों सेम लग रहे हैं आपको? आर बोथ एंगल बाइसेक्टर सेम? समझ में आया या नहीं? Yes, sir. So both the angle bisectors are same, hence both the lines are equally inclined to one another. Clear or not?
समझ में आया? So that is about the questions that we discussed today. थोड़ा पीछे आइए सर. हाँ. हम सीक्रेट यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशन यानी डीयू के लिए काम करते हैं. हो गया सर. समझ में आ रहा है बेटा? सो कुछ सीखा है नया अच्छा क्लास में? क्वेश्चंस थोड़ा सा नया लगा? Yes, sir. Yes, sir. Now you have to go back and practice from your higher level textbook, okay?